ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪੇ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ इतनी तड़फ है, इतनी प्यास अंदर है कि ना खाना चंगा लगता है, ना पीना चंगा लगता है, ना वस्त्र पहनने चंगे लगते हैं, ना कोई सुख चंगे लगते हैं। हर वक्त बस इको ही तांग है कि किस वक्त मैं जाके गुरु नानक दे दर्शन करा। हर वक्त अंदर यही प्यास है। बस हालत सतगुरां दी ऐसी बन गई है, जैसे कल बहुत सारे शब्द आपने सरवण कीते ने कि मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद न आवे जियो पावे अन्न न पानी। पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन पिर क्यों सुख पाइए। गुर आगे करो बेनंती जे तुद पावे। ज्यों मिले तिवें मिलाइए। महाराज जिवें भी हो सके मेरा मिलाप कराओ, मैनू दर्शन दिओ। क्योंकि एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। हुण कद मिलिए प्रे तुद भगवंता। मोह रैन ना बिहावे नींद न आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो। बाबा फरीद ने भी इस अवस्था का जिक्र किया है। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलियां खूंडे काग। अजह सो रब ना बहुड़ियो देख बंदे के भाग। भगतां दे कोल मैं कल अर्ज कीती सी कि दुख है। संसार दे दुखां नूं अगर असीं तोल के देखीए ना तो भगतां दे दुख
ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭਗਤ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਭਗਤ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹ ਦੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਈਆ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਘਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਜਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਈਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉਸਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਰੋ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਤਨੀ
भयंकर हालत सी उसकी। भाई साहब इत्थे कह रहे ने कि कोई बंदा जिउंदा ही सड़दा होवे, अगन जरत, उहदे सड़दे होए दी जितनी पीड़ा होंदी है, जितना दुख होंदा है उसका, भाई साहब कहंदे ने उन्होंने इकट्ठा कर लवो। मैं फिर अर्ज करा कि तराजू का एक पलड़ा अपनी सुरत विच बना लवो, जिहड़े दुख भाई साहब दसदे जा रहे ने उन्होंने उस पलड़े दे विच पाई जाओ। अगन जरत जल बूडत, कोई बंदा जिउंदा ही पानी दे विच डुबण लग पवे, जिउंदा ही। श्वास अगर मनुख नूं ना आवे तो कितना बंदा तड़फदा है। किधरे हवा घट होवे, पहाड़ां ते जदों जांदे ने ऑक्सीजन घट होवे, भावें मिलदी होवे पर घट होवे, बंदा तड़फण लग पैंदा वे। जिन्हां नूं दमे दी शिकायत होंदी है ना, साह दी बीमारी होंदी है, उन्हां नूं खंघदियां खंघदियां जदों साह नहीं मिल पांदा है पूरा, कितनी बुरी उन्हां दी हालत होंदी है। भाई साहब कहंदे ने कि अगन जरत जल बूडत, पानी दे विच डुबण लग पए। हुण पानी विच डुबेगा मनुख, कितना वो तड़फदा होवेगा, कितना। थोड़े दिन पहले ही फेसबुक दे उत्ते एक CCTV कैमरे दा एक क्लिप आया सी, उहदे विच फेसबुक दे उत्ते बच्चा एक सरोवर दे किनारे खेडदा पिया, उहदा पैर फिसलिया ते पानी विच डिग आवे। आस पास कोई भी नहीं सी उस वक्त। शायद यह लॉकडाउन दी होनी है, क्योंकि लॉकडाउन लगा होया सी ते कोई घरों बाहर भी नहीं सी उस वक्त। वो बच्चा पानी दे विच वो कितना तड़फदा है, उन्हें देखण वाले दा दिल कंब जांदा वे। ते जिहड़ा डुबदा पिया वे पानी दे विच, जिहदे श्वास नहीं आ रहा है, जिहदे नक विच पानी वड़ गया, मूँह विच पानी वड़ गया, फेफड़ियां दे विच पानी चला गया, वो बंदा कितना तड़फदा होवेगा, कितना उसनूं दुख पहुँचदा होवेगा, कितनी तकलीफ विच होवेगा वो। भाई साहब कहंदे ने उस डुबदे होए बंदे दे कोल जितना दुख है ना, उन्होंने इकट्ठा कर लो। अगन जरत जल बूडत सरप ग्रसे, सरप सप किसे नूं डंग मार लवे, जहर चढ़नी उसनूं शुरू हो जावे। ज्यों ज्यों जहर कहंदे ने चढ़दी है ना शरीर दे विच, शरीर दे अंगां दे विच जदों फैलदी है जहर, वो बंदा फिर कितना तड़फदा है, कितना उसनूं दुख पहुँचदा है, कितनी तकलीफ विच आउंदा है। भाई साहब कहंदे ने कि उसनूं भी इकट्ठा कर लवो। 3 हो गए ना, अगन जरत जल बूडत सरप ग्रसे। चौथा भाई साहब कहंदे ने शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। शस्त्रां दे नाल कोई मैदाने जंग विच लड़दा पिया होवे ते शस्त्रां दे नाल उहदा रोम रोम जिहड़ा है वो जख्मी होया होवे, रोम रोम जख्मी। आपां 1 मिनट वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जदों चमकौर दी जंग लड़े हन, तो बाबा अजीत सिंह जी जिस वक्त मैदान विच जाके दुश्मनां दे नाल लड़े हन, क्योंकि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। 10 लाख दी फौज ते बाबा अजीत सिंह जी ते नाल उन्हां दे 5 सिंह ने लड़े ने। पहले उन्होंने तीर चलाया, फिर तलवार, फिर उस तो बाद फिर बरछी नाल लड़े ने। लंबा इतिहास है, सारा पता है तुहानूं। जिस वक्त निहत्ते हो गए ना, तो चारे पासे तो दुश्मनां ने हमला किया है। किसी ने तीर मारिया, किसी ने बरछी मारी है, किसी ने गोली मारी है, किसी ने तलवार मारी है। हर पासे तो वार होए ने।
मैं पढ़िया सी इतिहासकार का कथन, कहंदा 500 के करीब जख्म बाबा अजीत सिंह जी के तन नूं लगे हैं, 500 के करीब, लेकिन फिर भी उन्हां दे कदम पिछे नहीं आए, अगे ही वधदे रहे ने। रोम रोम जिसदा जख्मी हो जाए मैदाने जंग दे विच, वो कितनी तकलीफ विच होंदा है, कितना दुख होंदा है, उहदे कोल कितनी पीड़ा होंदी है। ये गल वखरी है कि शूरवीरां दे चेहरे दे उत्ते कदी ये एहसास नज़र नहीं आंदा है उन्हां दे, लेकिन तकलीफ तो अंदर होंदी है ना। कितनी उन्हां दे अंदर तकलीफ है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि इसनूं भी इकट्ठा कर लवो, शस्त्र अनेक रोम रोम करकात है, सारा शरीर रोम रोम जिसदा जख्मी होवे, उहदी पीड़ा नूं भी भाई साहब कहते हैं तराजू दे एक पलड़े विच पा लवो। ये एक पंक्ति है। दूसरी पंक्ति दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, गृखम ओ सीत बरखमाए निस्परात है। बिरथा अनेक, शरीर नूं कई तरह की बीमारी लग जाए, कोई शरीर नूं रोग लग जान, तकलीफ हो जाए, वो बंदा कितना तड़फदा है। जिवें साह की बीमारी है, बहुत तड़फदे ने, कैंसर का रोग हो जाए बहुत तड़फदे ने, एक्सीडेंटल केस हो जाते ने बड़ा तड़फदे ने। भाई साहब कहते हैं कि बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, कई तरह दियां आपदावां उत्ते आ जान, जैसे बरसात बहुत आ रही है, सर्दी बहुत पै रही है, आंधी तूफान चलते पे ने, उहदे विच भी कई लोग बड़े दुखी होंदे ने, परेशान होंदे ने। भाई साहब ने उसका भी जिक्र किया कि गृखम ओ सीत बरखमाए निस्परात है। गर्मी बहुत पै रही है, अत दी 50 दर्जे टैंपरेचर हो गया है, लेकिन तन नूं छुपाण वास्ते कोई घर नहीं है, कोई छां नहीं है। वो कितना तकलीफ ही होवेगा बंदा। सर्दी दे दिन ने, अत दी कड़ाके दी ठंड पैंदी पई है, लेकिन तन नूं छुपाण वास्ते कपड़े नहीं हैं कि ठंड तो बचिया जा सके, मकान नहीं है शरीर नूं बचाया जा सके। गरीब बंदे जैसे असी देखते हैं ना, झुग्गियां चोपड़ियां दे विच रहिंदे ने, गर्मी दे विच भी बुरे हाल, सर्दी दे विच भी बुरे हाल, तन ढकण वास्ते बस्तर नहीं हैं, चंगे मकान नहीं हैं। सानू पक्के मकानां दे विच ठंड लगदी रहिंदी है, वो विचारे झोंपड़ियां दे विच सुत्ते हुंदे ने। भाई साहब कहंदे ने कि गृखम ओ सीत बरखमाए निस्परात, बरसात पैंदी पई है, पानी छत तो टपकदा पिया, घर विच रहण वास्ते थां नहीं है, कितनी तकलीफ होंदी है। चलो ये दिन असी आप भी वेखे ने, बहुत छोटा घर सी, गरीबी बहुत होंदी सी घर विच। बरसात के दिनों विच ना पानी जदों छत तो चौंदा सी ते घर भी कच्चा सी, फर्श भी कच्चा, चंद मिनटां दे विच ही चिक्कड़ हो जांदा सी। माता साडी गोद विच लै के सानू ते सारी रात बैठी रहिंदी सी और रोया भी करदी सी। उस वक्त कितना दुख होंदा वे, कितनी तकलीफ होंदी है भी गर्मी है, बचण दे कोई साधन नहीं हैं, ठंड है, बचण दे कोई साधन नहीं हैं, बरसात दे दिन है, पक्की छत नहीं है। उन्हां लोकां नूं कितनी तकलीफ होंदी है, कितना दुख पहुँचदा है। भाई साहब कहंदे ने कि उस नूं भी इकट्ठा कर लवो। ये दूसरी पंक्ति है भाई साहब दी। तीसरी पंक्ति दे विच भाई साहब कहंदे ने गौ दिज बधु बंस विश्वास बद कोट हत्या,
तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। गऊ की हत्या कर देना, भोले पुरुषों का सतपुरुषों का कतल कर देना, गऊ दिज बधू वंश विश्वास बदकोट हत्या, किसी दू नाल विश्वास घात कर देना, धोखा दे देना, अगले का विश्वास तोड़ देना। भाई साहब कहते ने ऐसे लोग भी कदी सुखी नहीं रहते हैं, कदी सुखी नहीं रहते। जड़े हत्यारे लुटेरे चोर डाकू कातल बलात्कारी जड़े हुंदे ना, ये कदी सुखी नहीं रहते हैं। अंदरों उन्होंने बड़ा दुख होंदा वे, अंदर बहुत दुख होंदा है उन्होंने। यही कारण कि इस तरह के लोग बिना शराब तो कदी सौ नहीं सकते हैं, बिना नशे तो रह नहीं सकते हैं। वो इसे वास्ते नशा करते हैं क्योंकि अंदर उन्होंने कोई दुख उन्होंने अंदरों अंदरी खाई जाता है, खाई जाता है। तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अंदर तृष्णा चलती पई है, तृष्णालु पुरख कदी भी सुखी नहीं हो सकता है। तो महाराज कहते ने तृष्णा विरले की ही बुझी है, क्योंकि तृष्णा बुझती नहीं है तो फिर बंदा अंदरों फिर सुखी कदी हो नहीं सकता है। तृष्णालु पुरुष भी बहुत दुखी होता है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने इन्हां 3 पंक्तियां दे विच दुनिया दे जिहड़े सब तो वड्डे दुख ने उन्हां दुखां नूं चुन चुन के एक तराजू दे पलड़े दे विच पाया। सारे दुख ते चौथी पंक्ति दे विच भाई साहब ने जिहड़ी गल कीती है, आप 3 पंक्तियां पहले सरवण करो तो फिर मैं चौथी पंक्ति आप जी नूं सरवण कराना। भाई साहब कहंदे ने अगन जरत जल बूढ़त सर्प ग्रसे शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत गृखम ओ सीत बरख माहि निस्प्रात है। गौ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। चौथी पंक्ति दे विच भाई साहब ने जिहड़ी गल कीती है, भाई साहब कहंदे ने अनेक प्रकार जोर सकल संसार सोध पिया के बिछोह पल एक ना पुजात है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि अनेक ही प्रकार के इन्हां दुखों नूं तराजू दे विच रख के तोल के देखो, पिया के बिछोह पल एक ना पुजात है। प्रीतम प्यारे दे विछोड़े दे विच, अपने परमात्मा दे विछोड़े दे विच भाई साहब कहते हैं कि पिया के बिछोह पल एक ना पुजात है। एक पल दा जिहड़ा भगतां दे कोल गुरमुखां दे कोल संतां दे कोल जिहड़ा दुख है ना, संसार दे सारे ही दुख एक पल दे बराबर भी नहीं हैं। भगत इतने दुखी होंदे ने। लेकिन मैं फिर अर्ज कर दियां कि संसारिक लोकां दे दुख संसार दे प्रति पदार्थां दे प्रति हैं, भगतां दा दुख परमात्मा दे प्रति है। बल्कि जिहड़ा भगतां दे कोल दुख है ना, ये दुख भी एक आनंद है उन्हां दा। संसार दा दुख दुख देंदा है, परमात्मा दा दुख ये भी एक सुख देंदा है, एक रस देंदा है, एक आनंद देंदा है। ये भी एक आनंद है। कई भगतां ने तो कह ही दिता, ठीक है परमात्मा तू नहीं मिलता तो कोई गल नहीं, बस तैनू मिलन दी ये तड़फ जिहड़ी है ना, ये बनी रहन दे, बस ये तड़फ बनी रहे मेरे अंदर। अंदर एक चाहत, तेरा प्रेम, तेरे विछोड़े दा दर्द ये बनिया रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए है। कितना अंदर दुख होंदा है। गुरु रामदास महाराज ने भी इस नूं बयान किया है कि अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। जितनी अंदर तड़फ प्यास मेरे अंदर लगी हुई है ना, ये तो मैं ही जानदा हाँ, कोई दूसरा थोड़ी जान सकता वे। इसनूं लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। इत्थे जिन्हों पीड़ लगती है वही समझ सकता है, इसनूं दूसरा कोई नहीं समझ सकता।
भाई लैणा जी दे अंदर ये तड़फ कि किस वक्त मैं वापस जावां ते प्यारे दे दर्शन करा मैं, गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन करा मैं। महाराज सच्चे पातशाह ने कारोबार थोड़ा समेट के जिम्मेदारी अपने पुत्रां नूं सौंप के ते महाराज ने चलन की तैयारी कर ली है। तो लोगों ने आके आख्या भी जिदे कोल तू चलिया लोग तो उसनूं कुराइया कहंदे ने, वो तो कुराइया है। कोई उसनूं पूतना आखदा है, कोई बेताला आखदा है, कोई आदमी कहंदा है बेचारा, कोई आखे पूतना, को कहे बेचारा, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। तू जिदे कोल चलिया वो तो कुराइया है। तो गुरु अंगद देव जी महाराज लैणा जी दे रूप विच कहंदे ने जे वो कुराइया है तो फिर दुनिया दे विच कोई सही राह ते टुरदा ही नहीं पिया है, फिर तो कोई सही राह ते हो ही नहीं सकता। मैं फैसला कर लिया है जान दा। महाराज ने अपनी बच्ची अमरो जी का विआह भी कर दिता है। तो एक वड्डी लूण की डली लैके ना, क्योंकि लूण का वपार सी सतगुरां दा, एक वड्डा लूण का डला लैके ते नाल एक चटाई लई है। एक लूण की डली ते एक चटाई, दो चीज़ां लैके लूण की डली रखी है सिर ते चटाई अपनी बगल भी दबा के ते सतगुर जदों चलन लगे ना, तो जेड़े नौकर सन घर दे विच उन्होंने हाथ जोड़े कहन लगे महाराज असी आप छड़ के आ जाने आ, तुसी ये तकलीफ क्यों करते हो? क्योंकि बड़ा वड्डा कारोबार सी, बड़ा सन्मान सी भाई लैणा जी का। नौकरां ने आख्या भी असी आप छड़ के आ जाने आ, तुसी साडे नाल घोड़ी ते चलो। पता है भाई लैणा जी ने की आख्या है? कहंदे ने मैं उत्थे सेवादार बन के चलिया हाँ, सेवादार बन के, मैं कोई उत्थे साहूकार बन के नहीं चलिया। मैं उत्थे चाकर बन के चलिया हाँ, कोई मालक बन के नहीं चलिया हाँ। मैं उत्थों कुछ प्राप्त करन चलिया हाँ, मैं उत्थे कुछ देन नहीं चलिया हाँ, मैं लैण चलिया हाँ। मैं चाकर बन के चलिया, मैं सेवादार बन के चलिया। सतगुरां ने जिहड़ियां दो चीज़ां लईआं ने ना, अगर इन्हां दी गहराई दे विच चले जाओ, जैसे लूण लिया सतगुरां ने, लूण भावें तुसी पानी च पा दिओ, सब्जी च पा दिओ, किसी भी चीज़ पा दिओ, लूण गल जांदा है, अपना आप मिटा देंदा है, वो अपना आप मिटा देंदा है। सतगुरां ने एक साडे वास्ते प्रमाण दिता है भी जे गुरु दे दर ते जाना है ना, तो जितनियां पदवियां हन वो सारियां पिछे छोड़ के फिर गुरु दे चरनां विच जा, तां तैनूं गुरु दी प्राप्ति हो सकदी है। जिथे अपना आप मिटा देना है, महाराज दी बाणी तो भी ये स्पष्ट हो जाता है। सतगुर कहंदे ने चाकर लगे चाकरी नाले गारब बाद, गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। नानक जिसनू लगा तिस मिले लगा सो प्रवान। ये महाराज सच्चे पातशाह की बाणी बई आप गवाए सेवा करे। जिहड़ी चटाई लई है ना, महाराज ने दर्शा दिता भी मैं उत्थे कोई आराम करने वास्ते नहीं चलिया हाँ, चटाई लैके चलिया हाँ। जितनी शरीर नूं जरूरत पवेगी उतना आराम करांगा, बाकी समा सतसंगत करनी है, सेवा करनी है, टहल कमाउणी है। ये महाराज ने दो चीज़ां अपने नाल लईआं हन। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी इस तरह की बख्शिश करते हैं। महाराज कहते ने आप गवाइए तां सह पाइए और कैसी चतराई। अपना आप गवा के जे असी सेवा करिए ना, अपने आप नूं मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर किछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। महाराज सच्चे पातशाह जी चल पे हैं। इस सतगुरां दे चलन की जिहड़ी स्पीड है ना, वो वेखण वाली है। अखां जिवें किसे नूं लभदियां पईआं हन,
पैर सतगुरां दे इंज उठते पैन बई मैं जितनी जल्दी हो सके गुरु नानक दे चरनां तक पहुँच जावां। मैं अंदर एक तड़फ है मिलन दी, किधरे इतनी प्यास इतनी तड़फ किधरे साडे अंदर भी होवे ना, तां सानू गुरु नानक दी प्राप्ति हो सकती है। पर असीं तां गुरुद्वारे जांदे आ ना, तो सोचते ही रहने भी रस्ते कोई मिल जाए, चलो उहदे नाल चार घड़ियां गप्पां मार लवां। अजे तो गुरुद्वारे का समा बहुत बाकी है। भाई साहब कीर्तन कर रहे होने ने, कथा कर रहे होने ने, आनंद साहब नूं तो अजे बड़ा टाइम पिया है, चले जावांगे। साडे अंदर वो खिच वो प्यास नहीं है साडे अंदर। मैं एक दिन देख के हैरान होया, एक बंदा विकलांग ते बैसाखियां नाल चलदा पिया, लत्तां उहदियां विकलांग सी। ਉਹਦੀ जान की जिहड़ी स्पीड सी ना बड़ी तेज़। मैं पता नहीं कित्थे जांदा पिया इतनी स्पीड विच। पता लगा भी शराब दे ठेके दे शराब लैण जांदा पिया। हुण देखो लत्तां भी कोई नहीं ते चलिया कित्थे है शराब लैण वाल। जितनी तड़फ उस दे अंदर है ना, इतनी तड़फ इतनी प्यास किधरे साडे अंदर पैदा हो जाए गुरु दे प्रति। मैं शब्द सुनन जाना है, मैं कथा सुनन जानी है, मैं अरदास भी शामिल हो के बेनती करनी है, मैं गुरु का हुक्मनामा सुन के उन्होंने हिरदे विच वसाना है। किधरे प्यास साडे अंदर हो जाए, पर साडे अंदर नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं ना सिद्धां ने पुछ लिया सी भी तू कितना को नाम जपना है। किधरे किधरे माता पिता ने भी ये सवाल किया है गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, बई तू कितना क नाम जपना, तैनू असी सौदा लैण भेजने आ, तू पैसे उजाड़ के आ जाना है। मझां चारण वास्ते भेजिया, तू उत्थे समाधि ला के बह गया, अगले दा खेत उजाड़ के आ गया। तैनू जिस काम वास्ते भी भेजने आ, तू कोई काम नहीं करके आंदा, तू कितना को नाम जपना है। कि चलो ठीक है, सवेरे उठो अपना थोड़ी देर नाम जप लिया, बाकी समा जिहड़ा है वो काम तो ठीक ढंग नाल करना। आखिर तैनू कितनी को भुख है नाम दी। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी मुस्कुरा पे ने। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने भी मेरे कोलों ना पुछो भी मैनू कितनी भुख है, मेरे कोलों ना पुछो। तो फिर उन्होंने पूछ लिया भी फिर किनू पुछिए। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि मारू मीह न तृपत्या अग्गी लहे न भुख। महाराज कहते हैं मारू थल जिहड़ा रेतला इलाका है ना, उन्होंने पुछो भी तैनू पानी की कितनी भुख है। मीह वसदा है ना, जूं जूं बूंदां पैंदियां ने सब तसदियां जांदियां। मारू थल की प्यास कदी नहीं बुझदी है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं अग्गी लहे न भुख, अग कोलों पुछो भी तैनू कितनी भुख है। अग दे विच तुसी लकड़ा पाई जाओ, कोले पाई जाओ, पेट्रोल पाई जाओ, मिट्टी का तेल पाई जाओ, लकड़ा पाई जाइए, कदी अग ने ये नहीं कहना है कि मैं तृप्त हो गई हाँ, मैं रज गई हाँ, कदी नहीं कहना है उसने। महाराज कहते ने राजा राज न तृप्त्या सायर भरे किसुक। कोई राजा अपना राज कितना फैलांदा है। जितनी राजे दे अंदर राज की भुख होंदी है, हर वक्त अपनी सीमावां नूं वधाना चाहता है, अपने खजाने नूं वड्डा करना चाहता है, सेना वड्डी करनी चाहता है, सारी दुनिया ते राज करना चाहता है, पर फिर भी वो कदी तृप्त नहीं होंदा है। महाराज कहते ने किसी राजे नूं पुछ लवो। फिर सतगुरु कहते ने समुंदर नूं पुछो, चारों दिशावां तो नदियां आके ते समुंदर दे विच पै जांदियां ने, चारे दिशावां तो। कदी समुंदर ने आख्या भी मैं तृप्त हो गया, मैं रज गया हाँ, कदी क्या समुंदर ने। फिर समुंदर का इतना आकार, जितनी मर्जी है धुप पवे, जितनी मर्जी है गर्मी पवे, समुंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।
ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੁੱਪ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਾ ਪੁੱਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਤਨੀ ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਤਨੀ ਪਿਆਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।